Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. सबको अपना नेशनल एंथम तो पता ही है ना? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. All of you know this? Yes. So you might be thinking, why ma'am is telling us about the national anthem? Because today we are going to study about a great poet, a great writer, a scholar who is none other than Rabindranath Tagore, and he is the one who has written our national anthem Jana Gana Man. So in the warm-up also the same thing is given. The song Jana Gana Man, composed originally in Bangla. You know where he belongs to? He belongs to West Bengal. So the mother tongue was Bangla. So he has written this in Bangla. Okay. अपनी regional language में लिखा. Was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on January 24, 1950. So January 24, 1950 was a big day in our history. So you should remember the date. All of you should know the date, that when actually our national anthem came into existence in the Hindi version. And who has written it? Rabindranath Tagore. Yes. Can you see a picture over here? He is the great scholar, poet, a writer, influencer. Rabindranath Tagore. So let's start the chapter. India is the land of many great scholars. Yes. Many great saints, poets, writers, leaders were born here. Kalidas, Tulsidas. There are many, Kabirji. Many great saints, big saints were born on this land. Gautam Buddha. They all were saints. But a person who had all the above qualities, all, a mixture of all, who was that? Rabindranath Tagore. He was not only a poet, but he was also a saint, writer, dramatist, musician, and etc. That is much more. तो वो खाली एक पोएट ही नहीं थे, खाली कविता ही नहीं लिखते थे, वो एक साधु थे. उनकी जो जीवन शैली थी बिल्कुल एक साधु की तरह थी. He was a big writer, लेखक थे, dramatist, he can act. जो लिखा उसको एक्ट करके दिखाया. एंड किड्स, इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी. आप सबको जब भी मौका मिले यू शुड एक्ट, बिकॉज जब भी हम कोई भी चीज़ करके दिखाते हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठती है. आप सबको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है. ऑल ऑफ यू वॉच टेलीविजन, मोबाइल, ऑल्दो द स्क्रीनिंग टाइम शुड बी लेस. सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट. In reality, he had a wonderful sense of humor. Do you know what is a sense of humor? किसी भी चीज़ को कोरिलेट कर देना बहुत ही ईजिली और इतने अच्छे तरीके से बताना कि दूसरा इंसान हंस पड़े. And as a child was a great daydreamer. अब daydreamer कौन होता है? जो दिन में भी सपने देखता है. कई बार बोलते हैं ना दिन में सपने देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, बट नहीं, कई बार हम सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करेंगे ना. तो सपने देखने भी बहुत ज़रूरी है, बट खाली सपने नहीं देखना है. देयर इज़ नो पॉइंट जस्ट टू बी अ डे ड्रीमर, बट what you are dreaming you should try. I am not saying that you should achieve it, but you should try to achieve it. Okay. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861. All of you should know that. He was a great person. Where he was born? He was born in Kolkata. He was born in Kolkata. Little Rabindranath found schools dull.
स्कूल स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, जाते थे स्कूल बोर हो जाते थे, उनको बहुत डर लगता था कि अरे वही सब डेली डेली। एज हिज क्लासमेट्स रिसाइटेड देयर लेसन्स, मैम जनरली क्या बोलती हैं, ओके स्टार्ट करिए पढ़ना, एक एक पैराग्राफ सब पढ़िए। तो रविंद्रनाथ टैगोर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड उनको बहुत बोरिंग लगता था कि ये क्या है। Rabi would gaze out of the window. What do you mean by gaze? What do you mean by gaze? To look out for a long duration. तो वो विंडो से विंडो वाले साइड बैठते थे और बाहर देखते रहते थे अपने क्लासरूम की विंडो से। Dreaming and observing nature. He used to like nature a lot. वो नेचर के पास रहना चाहते थे। He found his world of fantasy so fascinating that as the years went by he stayed away from the school. Fantasy क्या होता है? He found his world of fantasy. हम कुछ कुछ ड्रीम करते हैं ना, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तो दैट इज फैंटेसाइजिंग, जो कि रियलिटी में नहीं है बट हमारे सपनों में है, दैट इज फैंटेसी। तो वो इतना फैसिनेटिंग मतलब इतना अच्छा होता था, इतना अट्रैक्टिव होता था कि जैसे जैसे साल गुजरते चले गए ही स्टेड अवे फ्रॉम द स्कूल। वो स्कूल से उन्होंने थोड़ी दूरी बना ली, बट सबको दूरी नहीं बनानी होती क्योंकि सब रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होते हैं। हाँ, यू हैव टू बी इन स्कूल एंड यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू, सो बी फोकस्ड। ये उनके लाइफ के बारे में। अवे फ्रॉम द स्कूल टू वॉन्डर बाय द रिवर, वो कहाँ घूमते थे? रिवर के आसपास, वॉन्डर बाय द रिवर। नेचर अट्रैक्टेड हिम अ लॉट। जो नेचर, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ग्रीनरी, वो उनको अट्रैक्ट करती थी। रविंद्रनाथ्स मदर हैड अ ग्रेट फैमिली टू लुक आफ्टर। उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली थी, तो उनकी मदर जनरली लुक आफ्टर करती थी, ध्यान रखती थी पूरी फैमिली का। एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रेवल्ड अ लॉट। क्यों देखना पड़ता था उनकी मदर को इतना फैमिली के लिए? बिकॉज उनके जो फादर थे महर्षि देवेंद्रनाथ, ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क एंड अदर थिंग्स। Rabindranath had one constant companion, Ishwar, who was supposed to keep an eye on him. उनका companion means friend, you can say a friend. उनका नाम क्या था? ईश्वर। वो हमेशा ये देखते रहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे हैं। उनकी ये ड्यूटी दी गई थी उनको, to keep an eye on him, keep on watching what he is doing. He is going to school or not? He is going to the riverside. Okay. Ishwar often entertained Rabindranath with stories from the Ramayana and enjoyed discovering the mysteries of nature with him. But वो दोनों enjoy भी बहुत करते थे। कैसे enjoy करते थे? रामायण की स्टोरीज डिस्कस करते थे, पढ़ते थे। मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, कि नेचर में क्या क्या होता है, कितनी अलग है नेचर, हमें नेचर से क्या मिलता है और हम नेचर को क्या दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की बहुत डिस्कशन होती थी कि ये जो पूरी नेचर है, जो पूरी दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है, मीन्स ऐसी चीज़ें जो हम खाली कल्पना कर सकते हैं। तो रविंद्रनाथ्स पेरेंट ऑफन वरिड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। उनको थोड़ी, जो उनके पेरेंट्स थे ना, उनको थोड़ी चिंता रहती थी कि अरे ये बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या करेंगे। They were filled with pride. What do you mean by pride? Delight. Yes. बहुत खुश होना कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का, गर्व का दिन या गर्व का मोमेंट। They were filled with pride when he began to write poetry at the young age of only 8. तो जस्ट वो 8 years के थे और उन्होंने क्या लिखनी स्टार्ट कर दी थी? पोइट्रीज। तो उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था। उनको बहुत अच्छा लगता था कि दैट देयर सन इज राइटिंग पोइट्री, दैट टू एट द एज ऑफ 8। At 17, they sent Ravi to England for higher studies. जब वो 17 years के हुए तो कहाँ चले गए हायर स्टडीज़ के लिए? उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया।
he returned home to take up writing and acting. और जब वो वापस आए तो उनका फेवरेट क्या था? राइटिंग एंड एक्टिंग. In 1883 रविंद्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी. उनकी मैरिज किससे हुई थी? मृणालिनी देवी से. और कब हुई थी? 1883 में. Is it clear, students? One day Rabindranath's father called him and said, Rabi, you have a family now. क्या बोला उनके फादर ने? That Rabi, अब तुम्हारी एक फैमिली है, एक परिवार है. I think you are responsible enough to take care of our land at कुश्तिया. और उन्होंने क्या बोला कि हमारी एक लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है कुश्तिया में. So what you should do? What do you think about that? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? That you should take care of that particular area of land or not? Because कुछ तो करना पड़ेगा ना. Now you have a family. Now this particular कुश्तिया, where it is now? It is now in Bangladesh. Because उसके बाद separation हुआ था. So क्या बन गया था? एक दूसरा कंट्री बन गया था, बांग्लादेश, आफ्टरवर्ड्स. बट पहले बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था. Okay, so Rabindranath jumped at the offer and made the best of this stay there. Jumped at the offer means he accepted the offer. जो उनके फादर ने बोला that you should go there with your family and you should look after that piece of land. तो उन्होंने कहा ठीक है और उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से उस जगह की देखभाल की और वहाँ रहने लगे. He loved the simple songs of the farmers. वहाँ पर जो किसान थे वो वहाँ के हर जगह के लोकगीत होते हैं, some regional songs. तो वो फार्मर्स वाले सॉन्ग्स गाते थे. तो रविंद्रनाथ टैगोर को वो बहुत अच्छा लगता था. And the boatman and was kind to his workers. Boatmen, yes, river and then क्या होता है वहाँ पर? शिप्स होती हैं, है ना? तो उसमें बोटमैन्स होते हैं. So he used to enjoy with all of them and he was very kind to his workers. When he found that the poor illiterate peasants were steeped in superstition, he decided to open a school. अब उन्होंने वहाँ पर क्या नोट किया कि peasants कौन होते हैं? ये farmers and all, ये सब क्या है? illiterate हैं. Illiterate means a person who is not educated, who cannot read or write. और वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं. सुपरस्टिशियस मीन्स कई चीज़ें हैं हम लोगों की कि ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा. तो ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं. उनके पेरेंट्स ने बताया, उनके पेरेंट्स को उनके भी पेरेंट्स ने बताया. सो देयर वाज लॉट ऑफ सुपरस्टिशन कि अरे यहाँ नहीं जाना, अरे इसने ये कर दिया तो अब तो उनको लगा कि ओके दे आर इलिटरेट, सो दे आर बिलीविंग इन ऑल दीज थिंग्स. तो इसके लिए क्या किया जाए? इनको पढ़ाया जाए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें स्कूल खोलेंगे. सो फॉर दैट व्हाट ही डिड, मृणालिनी, ही सेड टू हिज वाइफ, वी हैव सम लैंड एट शांति निकेतन. उन्होंने अपनी वाइफ से बात की एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ इज मृणालिनी, कि हमारे पास कुछ ज़मीन है. कहाँ पर है? शांति निकेतन में, नियर भोलपुर इन वेस्ट बंगाल. ओके, वेस्ट बंगाल, वो बंगाल से बिलोंग करते थे. डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल देयर? सो व्हाट ही आस्क्ड फ्रॉम हिज वाइफ, सजेशन मीन्स आपस में डिस्कशन थी कि तुम्हें क्या लगता है कि हम वहाँ पर जाकर एक इनफॉर्मल सा स्कूल ओपन कर दें? ओह यस, एग्रीड मृणालिनी. मृणालिनी ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है. सो रेडिली शी सेड okay fine. Then she teased him, but you never liked school yourself, I have heard. तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको छेड़ते हुए चिढ़ाते हुए कहा कि अरे तुमने तो एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने तो ये सुना है कि तुम्हें खुद भी स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. तो मृणालिनी ने उन्हें बोला कि खुद तो अब स्कूल में पढ़े नहीं हो और अब कह रहे हो कि स्कूल खोल देते हैं. Well, I have plans for a different kind of learning environment. तब रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि नहीं, मेरा जो स्कूल होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा. जैसे ये स्कूल्स और जगह खुले हुए उस तरह का स्कूल नहीं होगा.
नॉट क्लोज्ड विद इन 4 walls. ऐसे करके क्लोज्ड रूम्स टाइप का स्कूल नहीं होगा. वेट एंड सी, यू जस्ट वेट एंड सी. And that is how Shanti Niketan came into practice. Here classes are held in the open air under the trees. So how the school was different? The schooling where Rabindranath Tagore studied, that was a room, enclosed room. But ये स्कूल कैसा था? यहाँ पर जो स्टडीज़ होती थी ओपन में होती थी अंडर द ट्री. बट रविंद्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. उन्होंने स्कूल ओपन किया, वहाँ पर अपनी तरह से जिस तरह से चाहते थे वहाँ पर बच्चों को और ये पेजेंट्स को और सबको पढ़ाना स्टार्ट किया. बट स्टिल ही वॉन्टेड टू डू मोर. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन. ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया, आवर मदरलैंड. वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे. मोस्ट ऑफ ऑल ही विश्ड फॉर पीस एंड हार्मनी. उनकी क्या विशेष थी? कि सब जगह शांति रहे, पीस एंड हार्मनी, कोई भी आपस में नहीं लड़े, मतभेद ना हो. दैट इज वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम डीपली. कब हुआ है पार्टीशन बंगाल का? 1905. एंड ही वॉज ब्रोकन एंड वेरी डिस्टर्ब्ड. ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीचेस एंड सॉन्ग्स. तो जब वो पार्टीशन हुआ, ही यूज्ड टू गिव द स्पीचेस एंड ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स. गाने गाते थे उन्होंने, जो गाने लिखे थे, और उससे पता चलता था कि वो कितने परेशान हैं. उन्होंने इसका विरोध किया कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है. वन ऑफ हिज सॉन्ग्स, अमर सोनर बंगला, आमी तोमा को भालोबासी, माई गोल्डन बंगाल आई लव यू, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था. वॉज लेटर मेड इन टू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश. बाद में वो बांग्लादेश का ही नेशनल एंथम बन गया. सो ही वॉज ऑफ दैट लेवल. Rabindranath Tagore also wrote Jana Gana Mana, I have already told you, which was adopted as the national anthem of India. तो बाद में उसको क्या बना दिया गया? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जिसको आज हम प्राइड के साथ सब जगह गाते हैं. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, he was given this particular, he was called as Gurudev. This was his persona. So Gurudev Rabindranath Tagore, as he is loving called, was awarded the Nobel Prize for the literature for his book of poems, गीतांजलि. उनकी एक पूरी बुक थी पोम्स की. उस बुक का क्या नाम था? गीतांजलि. उसके लिए उनको क्या मिला है? नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार. His collection of songs is called रविंद्र संगीत. और जो उनकी सॉन्ग्स की कलेक्शन थी उसको बोलते हैं रविंद्र संगीत. The poet, painter, nationalist and philosopher died at the age of 80 on 8th August 1941. So I hope all of you like this story. It is the story of great Guru Dev Rabindranath Tagore. So we salute to such a noble personality. So kids, now coming to the word meaning. Who is a scholar? Yes, a person who is knowledgeable, who is having lot of knowledge, that person is called a scholar. So Rabindranath was a great scholar. Gaze, to look for a long time. किसी चीज़ को देखते रहना बहुत लंबे समय तक. Enough means sufficient है, इतना बहुत है. Illiterate, a person who does not know how to read and write, जो पढ़ा लिखा नहीं है. Superstition, faith in charms, means अंधविश्वास. That is also called faith in charms. Recite, to sing, किसी भी चीज़ को गाना. पोम को भी हम recite करते हैं. Pride, delight, a feeling of pride, a feeling of honor. Adopted, मैंने adopt कर लिया, accept कर लिया whatever you are saying. Now moving to the comprehension parts, kid. Let's start.
All of you know how to fill the OMR sheet. So darken the circle of the correct option in the OMR sheet. India is the land of many scholars, scientists. Yes, so both of them. This is the most appropriate answer. Tagore was born in, where he was born? He was born in Kolkata. Okay. Rabindranath Tagore married Mrinalini Devi. Tagore wrote a book of poems called, poems की जो book थी, Gitanjali. Okay, coming to the B part, fill in the blanks. Tagore was born on 7th May 1861 in, where he was born? Yes, he was born in Kolkata. Rabindranath Tagore wrote, what he wrote? Jana Gana Man. My golden Bengal, I love you. What he said? My golden Bengal. Just a moment. I'll increase the size. Yes. My golden Bengal, I love you. When he said so? When there was a partition and Bangladesh was formed. In Shanti Niketan, classes are held in open air under the tree, isn't it? Open air. Say if the given statements are true or false. Tagore was born on 7th May 1861 in Kolkata. True. So I will write T over here. At 17, he was sent to New York for higher education. No, he was not sent to New York. He went to England. Tagore married Mrinalini Devi in 1883. In 1883? No, it is false. Tagore was nominated as the Prime Minister of India. No, again it is false. Tagore got Nobel Prize for Gitanjali. This is true. So this completes the comprehension part. I hope students, all of you enjoyed the class and the chapter. So goodbye for now. Have a nice day. Bye. Take care.